ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے, اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے, دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے, آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا, تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا, یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا اسٹرانگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا. تو یہ 10 چیزیں ضرور کریں. ہیلو ہائے السلام علیکم. ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل اذلان شیخ 1 2 3 4 5 میں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 10 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اگر آپ پریشان ہیں اور اس وقت یہ اپنی زندگی میں آپ نے عمل کی تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے. جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے, اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا, یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں, میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے, گناہوں سے بچو. آئی نو دس از ویری ہارڈ. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو, اے اللہ میری غلطی ہے, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان نہیں ہوتا. جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن, مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران, اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی. اس پہ جس کی جان پہ بنی ہوتی ہے نا, جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے پاس کیا ہوتا ہے, اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں, وہ تو عاملوں کے پاس کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں, تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں. پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا میں نے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فار ایوری ونز بینیفٹ. اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے. ملک کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ملکی حالات کی بات کی جائے, مہنگائی کی بات کی جائے, یا اوور آل اسٹریسز کی بات کی جائے, اوور آل لائف کافی اسٹریسفل ہو گئی ہے بیکاز آف ویریس فیکٹرز. اور سوالات بھی بہت اس پہ آتے ہیں. کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ اولاد کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ بے اولادی سے پریشان ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ انمپلائمنٹ سے پریشان ہیں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں, کسی کو کوئی چیز نہیں ملی, ریجیکشن ہو گئی ہے لائف میں, اس حوالے سے پریشان ہیں, کچھ بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہیں. تو یس, پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں, اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن دے آر پارٹ آف لائف. بٹ یہ واقعہ بڑا امیزنگ ہے. واقعہ ہے ایک سسٹر کا, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ فائدے کے لیے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں. یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا, سحر, بلیک میجک, جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن. اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی, اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی, تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں ساری چیزیں, یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے. دیکھیں آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ جادو ہو گیا, ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے. دیکھیں جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے, تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا, اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ. بہرحال ہیلتھ ایشوز اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے. ہی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنس کھائی, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی, کاؤنسلنگس کروائیں کئی بار, یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا. ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا. رقیہ کہتے ہیں اسپرچول علاج ہے ایک, جس میں دم کیا جاتا ہے, اوتھینٹک دم ہوتا ہے, قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا, اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا, لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ. پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجیے. شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے, اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکا ہوں. ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ یہ 10 چیزیں ٹرائی کرو, ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گے, اور ڈیورنگ وائل یو آر ڈوئنگ دیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے, بہت ڈاؤٹ آئے, لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ, اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, میں پوری کوشش کروں گا. انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے
यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ो, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकते हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना, ये आप उससे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार, बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुब्हान रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करें। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सिहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सिहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने, ज़्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा था। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूँ। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़े। सुबह शाम के अज़कार क्या है? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM, कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारी ऑथेंटिक है। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहाँ पे वो दुआओं की ऐप है, मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो व इय्याका नस्तईन, ये अलहुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज़ में भी अज़कार करोगी, स्पेशल डेज़ में अज़कार कर सकें, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज़ उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज़ तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मजीद, और शैतान उसमें मजीद हावी होता है, शैतान उसको मजीद वसवसे दिलाता है। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7 उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई ज़रूरतमंद को उसकी मदद करो, और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन हैं? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं हैं, उनकी मदद कीजिए। या कोई तकलीफ़ में है, किसी कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और ज़रूरतमंद है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो नज़र रखो ऐसे लोगों पर, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने पर, ऐसे लोगों पर नज़र रखो और उनकी मदद करना शुरू करो मॉनिटरी सेंस में। नंबर 7 उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। New Quench 96% snail mucin collagen boost serum. ये मत सोचो मेरी ज़िंदगी में मसाइल क्या हैं, डीमोटिवेशन को हावी ना होने दो, बस एक बार जहन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है, और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ ज़रूर निकालता है और उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान मिल जाता है। और नंबर 8 उन्होंने कहा कि मुझसे वादा करो कि जब तुम पे शदीद डीमोटिवेशन, मायूसी और गम हावी होगा, तो उस दौरान, उस मोमेंट में तुम्हें वो अल्फाज और वो दुआएं कहनी है जो हमारे नबी कहा करते। इधर उधर की चीज़ें नहीं कहनी, जो मार्केट में चल रही हैं वो चीज़ें नहीं, जो सुन्नत से साबित अल्फाज है वो कहने हैं। प्रॉमिस नहीं दे। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद गम में होते, शदीद कोई तकलीफ आती, हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब तुम पे रिग्रेट हावी हो जाए, तुम कहो मेरे साथ ये क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता तो ना होता, काश ये हो जाता तो ना होता, तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल।
उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये अल्फाज कहो जब भी तुम पे ये कैफियत हावी होती हैं, बजाय कि इधर उधर की चीज़ें ट्राई करने की। उसने कहा ठीक है मैं ये भी करूँगी। नंबर 9, उन्होंने कहा कि बेटा हर सिचुएशन से जो रिलेटेड दुआ है, खसूसन वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाम को रात को सोने के जो अज़कार हैं बेटा वो थाम लो, वो करो, रेगुलर करो, जितने मौक़ों की दुआएं तुम कर सकते हो, खुसूसन ऐसे जो वॉशरूम के उन्होंने कहा, और रात सोने से पहले की जो दुआएं हैं। और इसमें मैं आपको एक और भी केस स्टडी सुना दूँ, एक स्टोरी सुना दूँ। किसी ने मुझे बताया कि उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, हालांकि रात के अज़कार भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरह मुल्क जब से मैंने पढ़ना शुरू की मेरे नाइटमेयर्स ख़त्म हो। सूरह मुल्क इज़ अमेजिंग। और 10वीं चीज़ उन्होंने कहा कि बेटा इस दुआ को पकड़ लो, ख़ास इस दुआ को सख्त तकलीफ में, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि देखो तुमने हर चीज़ तो ट्राई कर ली। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीज़ें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीज़ें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीज़ें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीज़ों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई, 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीज़ें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीज़ों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया है, मैं खुश हूँ। और यकीन करें कि उसने कहा कि मैं कुछ साल बाद आई उन्हीं शेख के पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे, मेरे साथ 3 प्यारे बच्चे थे मेरे। तो शेख बड़ा हैरान हुए ये कौन है? शी सेड शेख मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दे दिए और काफ़ी सालों बाद वो गई होंगी। तो ये अपनी वो सक्सेस स्टोरी सुनाती हैं। देखें ये जो 10 चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई नसीहत वाली चीज़ें हम लोगों के पास चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं काउंसलिंग नहीं करवा सकते या किसी अच्छे से मशवरा नहीं कर सकते, लेकिन बताने का मकसद ये है जब तक भाई और बहनों आप खुद चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, अल्लाह के करीब खुद से नहीं होंगे, दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, आपका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होगा, तब तक गारंटी कोई नहीं है कि आपको सुकून मिले या चीज़ें हल हों। देखिए खुदा ना खास्ता अगर मसला हल ना भी हुआ, ये 10 चीज़ों से कम अज़ कम अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आपको ज़हनी और कल्बी सुकून ऐसा मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। लेकिन ये भी उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह मसला उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। इसी तरह की मोर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर।